Hello students, as we have discussed the basics of secretions of hydrochloric acid and their regulation from the stomach. In the today's video lecture we will cover the various class of drug that used in case of peptic ulcer disease or in duodenal ulcer. So before going into the detail of discussion, that I would like to mention that in today's video lecture we will cover only one class of drug that falls under the category of the drug who actually responsible for decreasing the amount of acid. मीन्स जो ड्रग एसिड के अमाउंट को स्टमक में डिक्रीज कर रही होंगी उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. उसमें कई सारी कैटेगरी के ड्रग्स हैं, लेकिन आज जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे उसमें हम आज जो कवर कर रहे हैं वो है हमारी प्रोटॉन्स पंप इनहिबिटर्स. प्रोटॉन्स पंप इनहिबिटर में देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स लाइक ओमिप्राजोल इज देयर, लैंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राइट. So these are the short form: omipra, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole and esomeprazole. That is your part and you have to learn these drugs that falls under proton pumps inhibitor. I will put a clear concept in your mind that how does proton pump inhibitor is beneficial, and before discussing this I will discuss what is the actual meaning of peptic ulcer disease, what are the condition, or we can say what are the factors that is responsible for exposing the condition like peptic ulcer, and we will discuss proton pumps inhibitor, their characteristics and their pharmacokinetic, and we will discuss the specific side effects and what is the reason behind of that side effect, because most of the author all the time students find the side effects of proton pump inhibitor or any kind of drug, but they cannot define, like if there is a side effect like depression, then the students ज़्यादातर वो कंफ्यूज होते हैं कि डिप्रेशन अब किस तरीके से ड्रग कॉज कर रही है, या अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लिख तो दिया है बुक में लेकिन उसका रीजन क्या है. तो फॉर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ईच साइड इफेक्ट आई विल एक्सप्लेन इन लेटर इन टुडेज डिस्कशन. सो वन बाय वन वी विल कवर एवरीथिंग as we are studying pharmacology of peptic ulcer and we are studying proton pumps inhibitor. First, what is peptic ulcer disease? Peptic ulcer is actually a condition in which the part of the GIT, or we can say some segment of the GIT, gastrointestinal tract, exposed to hydrochloric acid. जो पार्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां पर प्रेजेंट होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए एक्सपोज्ड पार्ट होंगे, जहां पर वो जा सकता है, जहां पर वो है, उन जगह पर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम, उसके कंडीशंस कई हैं. या देखिए पेप्टिक अल्सर के जो इटियोलॉजी है कि किस किस कंडीशन से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, उसमें सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर होगा तो वहीं पे जहां पे एसिड आपका एक्सपोज हो रहा है, तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पार्ट ऑफ द GIT that is exposed to the hydrochloric acid, like if we talk about the stomach where itself a hydrochloric acid synthesized from the parietal cell, and the first part of the small intestine which is duodenum. Means duodenum and the stomach is vulnerable for peptic ulcer. Number one, this is the number one concept. Number two, how does the genesis of peptic ulcer occur? It means now we will talk about what is the concept through which the peptic ulcer occur. किस तरह से पेप्टिक अल्सर होता है. देखिए पेप्टिक अल्सर होने की वजह दो हैं. नेचुरली अगर इसको लेमन लैंग्वेज में समझें तो अगर स्टमक के अंदर एसिड है तो एसिड का एक पर्पज है. बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसका एक पर्पज है. पर्पज तभी तक है जब वो एक आइडियल क्वांटिटी या वॉल्यूम में प्रेजेंट है.
अगर हम HCl की बात करें तो उसका आपके जो भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस आते हैं या फूड में प्रोटीन के डाइजेशन में, वो सबका इन्वॉल्वमेंट है एसिड का। लेकिन वो एसिड भी एक तरीके से बैलेंस्ड है, क्योंकि एसिड है तो वो किसी भी जो अंदर स्मूथ मसल्स हैं या इनर्वेटेड सेल्स हैं, स्टमक के पार्ट्स हैं, स्टमक की मसल्स हैं, उनको क्या कर सकती है, होल्स कर सकता है वो एसिड, क्योंकि एसिड भी वहां पर स्ट्रांग होता है जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 होता है। तो कई बार एसिड से बचाने के लिए भी इस तरीके का नेचर ने अरेंजमेंट दिया होता है स्टमक में कि उसके ऊपर एक म्यूकस की जेल लाइक लेयर होती है, ताकि एसिड उस पे ऊपर हो लेकिन उसके नीचे जो भी सेल्स या स्टमक का पार्ट है वहां पे अफेक्ट ना हो। लेकिन कभी कभी जब कभी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, जब कभी पेप्टिक अल्सर डिजीज की जेनेसिस होती है, मींस पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसकी वजह क्या होती है। देखिए, देयर आर टू फैक्टर, सिंपल इफ वी डिफाइन, देयर आर टू फैक्टर लाइक प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड एग्रेसिव फैक्टर। Protective factors are what? That is responsible for minimizing the occurrence of what? Minimizing the occurrence of peptic ulcer। वो फैक्टर जो पेप्टिक अल्सर होने के अकरेंस को, मींस HCl के लेवल को क्या करेंगे, कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और डिफेंसिव फैक्टर क्या होंगे कि अगर मान लीजिए HCl का लेवल हमको बढ़ाना है तो साथ में किन चीजों का डिफेंस लेके चलना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का बैलेंस होना, वेदर इट इज एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर, दैट इज मस्ट। अदरवाइज द imbalance between these two factor, aggressive and defensive factor inside the stomach, will leads to the genesis of peptic ulcer disease. Like, so we should know the aggressive factor like acid, or we can say the bile is also aggressive factor, or Helicobacter pylori is a drug, is a bacteria that present in the stomach that is also responsible for creating a perforation in the stomach, which leads to the peptic ulceration there. So acid, whether it is acid, whether it is pepsin, whether it is bile or Helicobacter pylori bacteria, these all are aggressive factor, and the control of these factor is controlling of these factor is performed by defensive factor, जो कि इसको कंट्रोल करेंगे, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन, म्यूकस, नाइट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वेजोडाइलेटेशन। मींस वी कैन से द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो these condition, whether it is increased HCO3 bicarbonate ion, mucus, nitric oxide, prostaglandin and increased blood flow, or we can say vasodilatation, these all plays a defensive role. So the imbalance between these two is responsible for the genesis of peptic ulcer disease. This is number one reason. Number two reason is that only the bacteria alone, if it found a favorable environment that the bacteria can multiply by many numbers, that H. pylori is the only bacteria present itself in the stomach, is responsible for creating a holes that leads to the ulcer in the stomach, means peptic ulcer. Means we can say the infection of the H. pylori is also responsible for causing peptic ulcer. Third one is, which is drug induced. Drug induced is what? As we have discussed, this diagram is detailed into the previous discussion. आपको इस डायग्राम के अगर हर स्टेप्स को समझना है तो आप जो बेसिक का वीडियो लेक्चर है वो आपको देखना मस्ट है, क्योंकि आप इस डायग्राम को लेके ही चलेंगे तो आपको सारी क्लास की ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपको मेरा सबसे पहली एडवाइस यह है कि जो जस्ट पहले का वीडियो लेक्चर है, जो बेसिक्स के लिए किया गया था, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि इन शॉर्ट यहां पे मैं शॉर्ट इसको कवर कर लूंगा, लेकिन डिटेल्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो होता क्या है, लाइक मैंने लिखा कि ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड NSAID, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर कैसे होता है, और वो भी एग्जांपल दिया है जैसे NSAID।
देखिए हमारे जो भी फैक्टर्स हैं लाइक गैस्ट्रिन हार्मोन, हिस्टामिन फ्रॉम एंटेरोक्रोमैफिन सेल, acetylcholine, they all have their receptor in the parietal cell like acetylcholine M3 receptor, histamine H2 receptor and gastric cholecystokinin 2 receptor, CCK2 receptor. By binding to their specific receptor, they ultimately responsible for release of calcium like M3 and CCK2 is responsible for activation or release of calcium by the pathway IP3 diacylglycerol, but the histamine induced the H2 receptor, activate the H2 receptor and responsible for activation of cyclic AMP that leads to the calcium release. यहां पर M3 और CCK2 में क्या रिस्पॉन्सिबल है? IP3 एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल, जबकि हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है साइक्लिक एमपी. सो इन ऑल वे, whether it is M3, whether it is H2, whether it is CCK2, they all are ultimately responsible for release of calcium, and that calcium presents on the parietal cell canaliculi. In the canaliculi there will be presence of this structure. This is proton pump, H plus K plus ATPase pump. This proton pump is activated by these all receptor. But there is one more mechanism presented here. This prostaglandin E2 is responsible for inhibition of gastrin that was earlier क्या कर रहा था, जो कि इसको एक्टिवेट कर रहा था प्रोटॉन पंप को, और जितना ज्यादा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा H प्लस आयन इस ल्यूमेन में जाएगा और Cl माइनस लेके क्या बनाएगा HCl. तो अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर रहा है, नेगेटिव साइन, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक एएमपी इनहिबिशन, मींस prostaglandin is responsible for decreasing the amount of HCl in the lumen by decreasing the effect of gastrin or decreasing the effect of H2 mediated HCl release. So this is done by prostaglandin. If we have a certain class of drug and that drug is responsible for inhibition of prostaglandins, तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एसिड के लेवल को कम कर रहा है, अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को ही कम कर देंगे तो चांसेस हैं किसके? अल्सरेशन के क्या होंगे? चांसेस होंगे. उसको कुछ ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ म्यूकस एज वेल एज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. Because the because the prostaglandin is responsible for mucus that were earlier what? Defensive factor. Bicarbonate ion was defensive factor. If we inhibit the prostaglandin, it means we will inhibit defensive factor, and once the defensive factor will be less, automatically there will be aggression will be higher, and that aggression will leads to the peptic ulcer. Relation with NSAID, all the NSAIDs are responsible for inhibition of prostaglandins, and prostaglandins, as we have already studied, is responsible for maintaining the SCO3 minus or the mucus, or by inhibiting the gastric, or by inhibition of the H2 induced HCl release. So by these all mechanism, if NSAID inhibit the prostaglandin, means there will be chances of occurrence of peptic ulcer disease. Then we will call this is drug induced. So there are three mechanisms: imbalance between the aggressive and defensive factor, infection of the H. pylori, and the drug induced NSAID. Apart from these factor, or you can say things, there are certain like condition like stress, mental states, other diseases, other pathological conditions also responsible for creating the peptic ulcer conditions. So आपका ये जो पार्ट है कि जेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड द पार्ट ऑफ GIT एक्सपोज्ड, ये आपका आई होप कि क्लियर होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द
proton pump inhibitors. Like how does the proton pump, we will discuss core proton pump inhibitor. अब हम केवल प्रोटॉन, अब हमने पेप्टिक अल्सर को पढ़ लिया, उसको डिफाइन कर लिया, अब हम उसके ट्रीटमेंट के लिए द क्लास ऑफ ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को पढ़ेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस तरीके से HCl के रिलीज को कम करा के पेप्टिक अल्सर में एज ए ट्रीटमेंट यूज होता है। नंबर 1, इसके पीछे जो कंसेप्ट लिखे हैं वही आपका पूरा होल मैटर है। वन बाय वन हम हर एक टेक्निकल चीज को पढ़ लेंगे तो आपका पीपीआई का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। लाइक नंबर 1, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर डिक्रीज द रिलीज ऑफ, or you can say decrease the formation or synthesis of HCl in the lumen of stomach by inhibition of this pump. That pump was earlier responsible for placing the H plus ion in the lumen, and once the H plus ion will be there, the Cl minus combined with H plus ion and there will be more and more formation of HCl. But when we use PPI, proton pump inhibitor, this proton pump inhibitor binds with this, like I tried to represent this blue color spiral shape structure as a proton pump inhibitor, and this structure covers this proton pump, and once this proton pump covers this, the speciality of this binding of this proton pump inhibitor is that this is irreversible in nature. Number 1, irreversible inhibition of proton pump occur. Irreversible inhibition का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्या रखना है, ऐसा नहीं है कि irreversible है तो एक बार हो गया तो अब दोबारा नहीं। irreversible का मतलब है कि they will proton pump inhibitors bind with the proton pump present at the canaliculi in the parietal cells irreversibly along with covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड होंगे पीपीआई, इरिवर्सिबल इनहिबिशन होगा। इरिवर्सिबल के मायने सिर्फ इतने हैं कि ये जो पैराइटल सेल हमारी क्वांटिटी में नंबर्स में फिक्स्ड है, इतनी है, तो अगर हम इस प्रोटॉन पंप को बाइंड कर लेंगे तो प्रोटॉन पंप को अब हम दूसरी ड्रग का इफेक्ट नहीं देख सकते, और भी अगर डोज बढ़ाते जाते हैं तो हमारा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोर एंड मोर प्रोटॉन पंप ज्यादा से ज्यादा क्या हो चुके होंगे, इससे सैचुरेट हो सकेंगे। जब तक ये इससे बाइंड होगा तब तक हम ड्रग का इफेक्ट बढ़ाकर नहीं दे सकते, क्योंकि जितने हमारे पास प्रोटॉन पंप थे पैराइटल सेल में वो सारे के सारे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। तो जब तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिलीज नहीं होगी यहां से धीरे धीरे, तब तक दूसरी ड्रग जब तक कि ये प्रोटॉन पंप नए प्रोटॉन पंप की सिंथेसिस नहीं होगी तब तक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला होता है। यही वजह होती है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकेशन और ट्रीटमेंट होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि दे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इर्रिवर्सिबल मींस वंस दे विल बाइंड टू द प्रोटॉन पंप इज inhibited up to until and unless there will be the formation of new proton pump, क्योंकि प्रोटॉन पंप की सिंथेसिस तो चलती रहेगी तो तब तक उसका इफेक्ट नहीं आने वाला, इसलिए हम बोलते हैं इसको इर्रिवर्सिबल। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर एक्चुअली ब्लॉकिंग द टर्मिनल स्टेप, लास्ट स्टेप, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसके लास्ट स्टेप में जो प्रोटॉन पंप रिस्पॉन्सिबल है H धन आयन को अंदर रखने में ल्यूमेन में, उस चीज को यहां पे ब्लॉक किया जा रहा है। नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ बेसल एज वेल एज स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड। इसके क्या मायने, बेसल गैस्ट्रिक एसिड का मतलब है कि आपके सपोज कोई भी कंटेंट है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा कि फूड है और फूड presence of food is sensed by the central nervous system, or the food is sensitivity or food presence of food is sensed by the gastrin hormone, ये हो सकता है। लेकिन कई बार जब फूड नहीं होता, मींस दो आपके फीडिंग इंटरवल के बीच जब आप खाना ना खा रहे हो, लाइक हम रात की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन नहीं होता। कुछ सिक्रीशन गैस्ट्रिक एसिड का कंटिन्यूअसली
कंटिन्यू बना होता है, हम खाना खाएं या ना खाएं, उसको हम बोलते हैं बेसल रिलीज। और स्टिमुलेटेड क्या होता है कि जब आपने कोई चीज इंटेक की तो उसके डाइजेशन के लिए जो बॉडी ने रिस्पॉन्स करके HCl को रिलीज कराया वो स्टिमुलेटेड कहलाता है। तो इन केस ऑफ यूजिंग PPI, बाय यूजिंग द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वी इनहिबिट द बेसल रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और एज वेल एज द स्टिमुलेटेड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नाउ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अपने आप में जो एक इनका स्ट्रक्चर है वो है वीक बेस का, और जैसा वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट द एनी काइंड ऑफ वीक बेस ड्रग विल ट्राई टू मैक्सिमली एक्यूमुलेट, ज्यादा से ज्यादा वो इकट्ठा होना चाहती हैं इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। ये फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि फार्माकोलॉजी में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि आपके most of the weak bases drug will try to accumulate in the acidic environment. As we know, all the proton pump inhibitor are weak bases and they will try to accumulate in the acidic environment, and that acidic environment is present in the what? Parietal cell, because HCl is there. pH is between 1 to 2. So weak bases, हम जितनी प्रोटॉन पंप लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, they will be naturally इन द न्यूट्रल pH दे विल बी इनएक्टिव। न्यूट्रल pH पे वो क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। इन द न्यूट्रल pH दे विल बी इनएक्टिवेटेड एट न्यूट्रल pH, बट वंस बिकॉज ऑफ देयर नेचर, लाइक देयर नेचर इज वीक बेसिस, दे एक्यूमुलेटेड इन द व्हाट? पेराइटल सेल एंड दे प्रोड्यूस देयर एक्शन। तो अब ये इनका ये एक्सप्लेन करने का मायने ये है कि इनका जो एक्शन है वो स्पेसिफिक है इन द पेराइटल सेल, क्योंकि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बिग बेस को कहां पे मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है। सॉरी। तो ये आपका ये पॉइंट भी क्लियर है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से वहां पर ये ड्रग जाती हैं, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? वीक बेस होता है। अब हम बात करेंगे तो आपको ये तीन चीजें याद होनी चाहिए कि दे आर इररिवर्सिबल, कोवेलेंटली बाउंड, हाउ डज दे इनहिबिट द बेसल एंड द स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड, या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसल एंड गैस्ट्रिक एसिड, एंड हाउ डज दे आर, we should know they must be inactivated in the neutral pH, and once they reach to the parietal cell they become activated and perform their action by inhibition of this proton pump. Now we will talk about the pharmacokinetic, क्योंकि यहां पे भी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, there are certain drugs like proton pump inhibitor, their absorbance or their bioavailability decreased in the presence of food। अगर हम खाने के साथ इसको लेते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्बेंस और बायोअवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी। दैट्स वाई ऑल द प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर आर एडवाइज्ड टू टेक बिफोर द ब्रेकफास्ट। और आप इन चारों चीजों को रिलेट करेंगे तो एक बहुत अच्छा फार्माकोकाइनेटिक का कॉन्सेप्ट बनता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। बिफोर द ब्रेकफास्ट वी यूज टू टेक proton pump inhibitor. Specifically we talk about the omeprazole. Omeprazole, as we take the orally, all the proton pump inhibitor when we take orally, because due to the presence of acid the chances of their degradation will be high, so the orally it degrades. So by avoiding the degradation of these proton pump inhibitor, we used to administer these proton pumps like omeprazole in a enteric coated capsules, and this enteric coated capsules, as enteric coated का मीनिंग क्या हो गया कि आपके वो इंटेस्टाइन में जाने के लिए टारगेटेड है। तो वो इंटेस्टाइन में जाने के लिए टारगेटेड है। वंस दे विल रीच इन द इंटेस्टाइन, एज देयर नेचर इज enteric coated, they will get absorbed in the blood, and from the blood they will leads to in circulation, they will become the part of circulation, blood circulation, और blood के थ्रू जब वो कहां जाएंगे? nearby blood vessel that present in the parietal cell, from there they will absorb, because their nature is to accumulate in the acidic environment as their weak bases. So क्यों हम उनका enteric coated करते हैं, क्या वजह है? और बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि फूड से उसका एब्जॉर्बेंस कम हो जाता है। एक आपको कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा कि किस तरीके से डोज
डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीज कर जाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हम डोज बढ़ाते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेटली इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाता है। सपोज करिए कि मैंने कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ड्रग का डोज बढ़ाया तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कुछ बढ़ा, मतलब दोनों में रिलेशन नहीं होगा। अगर आप ड्रग की डोज सपोज करिए कुछ बढ़ाते हैं, 5 यूनिट बढ़ाते हैं, तो उसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो फॉर एग्जांपल समझने के लिए केवल वो 20 यूनिट बढ़ जा रही है, मींस कोई प्रोपोर्शन नहीं है, उसमें डिस्प्रपोर्शनेट रिलेशन है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज डोज डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीजेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इट मींस कि सपोज करिए मैंने कोई प्लाज्मा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस पे जाके बाइंड हुई? प्रोटॉन पंप पे। अब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि प्रोटॉन पंप का इरिवर्सिबल कोवेलेंटली बाइंडिंग है इस पे, और ये हमारे प्रोटॉन पंप फिक्स्ड हैं क्योंकि ये केवल पेराइटल सेल्स में है। हम पेराइटल सेल वाले प्रोटॉन पंप की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन पंप की अगर हम बात कर रहे हैं और ये फिक्स्ड हैं, तो कुछ अमाउंट अगर हमने डोज का सपोज करिए हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का कुछ मतलब मींस एडमिनिस्टर किया, इनटेक किया, तो वो अगर इससे पूरा कवर हो गया है, तो अब जब हम दोबारा ड्रग को लेंगे, मींस अगर हम डोज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज डोज, तो अब ये इस पे एक्शन देने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी HCl का इनहिबिशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इससे कुछ अमाउंट बाउंड है, और ये जब तक फ्रेश नहीं बनेगा तब तक उस पे जाके वो ड्रग बाउंड नहीं होगी जो कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ कि ब्लड में अब अमाउंट वो ड्रग बिल्कुल बढ़ने लगेगी। तो इस कहीं ना कहीं क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसका इरिवर्सिबल इनहिबिशन रिस्पॉन्सिबल है कि आपके इंक्रीज डोज अगर करेंगे तो ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ेगी, एकदम से ज्यादा बढ़ेगी। उसकी वजह, इसीलिए कई बार ये भी वजह बोलते हैं कि हम इनको हिट एंड रन ड्रग कहते हैं, जो कि अभी कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा आपका। तो मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, देन यू विल क्रिएट अ बेटर कॉन्सेप्ट अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन किस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ेगी, ये आपका क्लियर हुआ। अब इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 मिनट्स 60 to 90 मिनट्स इनकी हाफ लाइफ होती है। तो अब आपको ये लगने वाला है अगर हाफ लाइफ इतनी कम है तो इस ड्रग का एक्शन कैसा होगा और कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन ड्रग में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ड्रग अगर हम एक बार लेते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आपकी ये ड्रग करीब 24 घंटे आपको इफेक्ट देने वाली है, सिंगल डोज लेंगे आप। तो इसमें उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल कोवेलेंटली बाउंड है, जब तक कि फ्रेश प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा तब तक उसका एक्शन आता रहेगा, भले उसकी हाफ लाइफ कितनी है 60 to 90 मिनट। इसीलिए हाफ लाइफ तो 60 to 90 मिनट है, बट इनहिबिट एसिड सिक्रीशन फॉर 24 आवर्स, क्योंकि इरिवर्सिबल और कोवेलेंटली बाउंड है। क्लियर है इतना? तो ये पहले वाले से रिलेट करिएगा। यही वजह है कि इन ड्रग्स को हिट एंड रन ड्रग्स बोलते हैं। तो हिट एंड रन ड्रग्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसने प्रोटॉन पंप को हिट किया, लेकिन हिट करने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो काफी देर तक रन करेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल द साइड इफेक्ट्स along with their specific regions, because I would like to create a beautiful concept of everything that I am taking in lecture. So the side effect like diarrhea, headache, migraines, or we can say the pneumonia and bone fracture, these are the side effects or side effects of proton pump inhibitor. So one by one we will discuss. Like diarrhea, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेंगे तो एसिड का लेवल क्या हो जाएगा? यहां बहुत कम। जब एसिड का लेवल कम होगा तो मींस वहां पे आप ये कह सकते हैं कि वहां पे बेसिसिटी का एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। तो हम उन बैक्टीरिया के लिए कॉलोनाइजेशन के लिए ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, लाइक क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकेल। एंड एज वी नो द वंस द क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकेल इज invaded inside the stomach, is responsible for what? Creating a diarrhea, because Clostridium difficile is responsible for causing the diarrhea. Simple concept. But अब किसी एक साइड इफेक्ट्स की मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं, तो आपको एक रीजन तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर एसिड का लेवल कम कर दिया हमने पीपीआई यूज करके, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका डाइजेशन भी क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट। जब इनएडिक्वेट डाइजेशन होगा तो भी चांसेस हैं आपको किसके?
डायरिया होने के, क्योंकि जीआईटी का जो कि होमियोस्टेसिस है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ डायरिया। व्हाट इज द रीजन ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन? As we know, the amount of acid is responsible for absorption of divalent cation like magnesium and vitamin B12. And as we know, the magnesium and vitamin B12 is responsible for the inhibition of the certain chemical mediators that is responsible for creating a migraine or headache. Or they can also inhibit the pain sensation. They also inhibit the pain sensation. They cut the pain sensation so that there will be the decrease the occurrence of headache and migraine. But when we use PPI, it means we are decreasing the amount of HCl. We are not allowing to absorb magnesium and vitamin B12, and that will leads to the decreased mediator decrease होंगे, और signal for the pain वो भी क्या होगा आपका ज्यादा जाएगा, क्योंकि अब उसको इनहिबिट करने के लिए मैग्नीशियम और विटामिन B12 नहीं है। देन दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ हेडेक एंड लाइक माइग्रेन्स। इन द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, न्यूमोनिया इज वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट। सेम explanation like gastric pH in the proton, by using the proton pump inhibitor is getting decreased. Once the gastric pH become decreased, means there will be chances of occurrence of basicity occur in this stomach area. In the stomach area, it means around the stomach area, we can say around the stomach like larynx, pharynx, there will be the chances of growing of what? There will be chances of growing of pneumonic bacteria like streptococcal pneumoniae. तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस क्यों होंगे ज्यादा? क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगर ज्यादा चांसेस होंगे, देन देयर विल बी चांसेस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, उसके चांसेस आपको ज्यादा हैं क्योंकि एसिड का लेवल कम है। अगर कोई पैथोजन या कुछ आता है तो इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस उसके कम हैं, और अगर वो एक बार आ गया तो ग्रो करके अराउंड द सर्टेन एरिया में जा सकता है, और सर्टेन नियर बाई स्टमक क्या है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी इसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या चांसेस होंगे? न्यूमोनिया के, अगर स्पेसिफिक उसी बैक्टीरिया से हो रहा है तो। अब हम बात करते हैं बोन फ्रैक्चर की। एज वी हैव डिस्कस्ड द मैग्नीशियम एंड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग द PPI बिकॉज द अमाउंट ऑफ HCl इज डिक्रीजिंग. So in same case, bone fracture like calcium absorption of calcium is also mediated by the HCl or supported by HCl. So once the level of HCl is decreased, the absorption of calcium is also decreased. The calcium in the long term use of PPI, अगर हम देखेंगे तो अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, it means there will be chances of what? Osteoporosis, or we can say there is chances of hip फ्रैक्चर, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो चुका होगा इन लॉन्ग टर्म यूजिंग ऑफ PPI. सो दिस इज ऑल अबाउट द PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. इस डायग्राम को आप एक बार जरूर वीडियो लेक्चर में देखिए. ऑलमोस्ट मैं क्लियर करता रहूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें. तो इस तरीके से आपका PPI का कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक बटन प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.